So today we are getting started with working with pandas using SQLite. Okay, SQLite. Before starting this demonstration, we need a resource, and the name of that resource is flight.db file. From where you will get that resource, you have to browse to act with the .in one-to-one, and you have to log in into that act with the .in one-to-one. Specify your username and password and just click on login button. Once you get logged in, you have to make a use of this section machine learning using Python. So you have to click on this machine learning using Python. Okay, and from the top you have to make a use of this resources. So once you click on this resources, you have to scroll down, and there is a data set available which we are going to use today, and the name of that data set is download SQLite flights dataset flights.db file. So as soon as you are going to click on this link, a DB file will get downloaded, and the name of this DB file is flights.db. Flights.db. Once this dataset will get downloaded, we are going to make a use of our Jupyter notebook. Those who are not having a Jupyter notebook, I would like to tell you the steps of downloading Jupyter notebook. So what you have to do is, first of all, you need to install Python exe file. Okay, so you just have to type download Python exe. So you can make a use of an official link www.python.org downloads. So you have to click on this link. Here you have to click on this downloads, and once you click on this download, you can get the latest version for your desired operating system. Okay, I'm going to make a use of my window, so you can click on this window, download Python 3.7.0. Okay, as soon as you're going to click on this download Python, an exe file will get downloaded, and you can install it by clicking next. Okay, once you have installed this exe, you can proceed with the download of its installation of Anaconda Navigator. So here you have to type Anaconda Navigator download, and you will get the official link www.anaconda.com/download. Okay, you can download this Anaconda for your desired operating system, either it is a Windows, Mac or Linux. Okay, so you have to click on Windows. If you are using a Windows operating system, an exe file will get downloaded and you have to install them. Once you have installed this Anaconda, you can make a use of a Jupyter notebook. Okay, you can make a use of this Jupyter notebook. Right click on it and just simply click on run as administrator. This will going to launch a Jupyter notebook on your default browser. My default browser is Chrome. So once you click on this Jupyter notebook, it will get open on your default browser. Here what you have to do is, you have to click on new, and we are going to create a new Python file. Okay, so I'm going to click on this Python 3. So we are going to implement our today's demonstration onto this Jupyter notebook. So those who are using first time, I would like to tell you the basic hierarchy of this Jupyter notebook. At the top, you will going to get the menu bar. Before that, you will going to get some tools. Okay, here you can make a use of this tool in order to run your cell, to stop your cell, and for interrupting your cell. Okay, so what we have to do is, we are going to write our script within these cells. Okay, before that, I'm going to make a use of files, and I'm going to rename by this notebook file. I'm going to give it a name as pandas implementation using SQLite. Okay, just rename your notebook to pandas implementation using SQLite.
Here I'm going to click on rename and let's get started. So today we are going to work with pandas using SQLite. So first of all, I would like to tell you what exactly an SQLite is and what exactly a pandas is. SQLite is a database engine and it is a software that allows user to interact with the relational database. ये आपका relational database क्या होता है? Which is in a form of row and column. Yes sir. So let's say before proceeding, I would like to tell you what exactly we are going to do. In your resource section, you will going to get a file named as pandas operation using flights dataset HTML file. So you have to just click on this HTML file. Okay. So this is what we are going to do. First of all, we are going to make a use of this SQLite dataset. What exactly we are going to do is, first of all, we would be connecting with our dataset. And the dataset which we are going to make a use is flights.db. So सबसे पहले what we are going to do is we have to connect with this dataset. Once we got a connection, we are going to fetch an information what exactly we have in this dataset. Okay, in this dataset you will going to get some tables and we are going to retrieve some information from a table named as airlines. Okay, this is a table which is available within your .db file. Okay. Once we get the information, we are going to fetch an information of longitude and latitude. Okay. This information actually specifying how many airports we have, in which continents, how many airports we'll have. Okay. Once we get those information, we are going to plot those airports. Okay. And for that, we are going to make a use of a new library, base map. Okay. And in order for plotting, or let's say in order to generate a graph, we are going to make a use of matplotlib as well. Okay. Here, I'm going to fetch an information of airports with the help of their longitude and latitude. Once I got this information, I will be generating a graph somewhat like this. Okay. This graph is actually representing how many airports we have. Okay. So we'll generate that map and this dots in a red specifying how many airports you have. Okay. Once we have generated this graph, we will be going to perform some CRUD operations. Okay. We are going to perform a CRUD operations. And for that, we are going to make a use of a pandas library. Okay. With this panda, first of all, we are going to read the data. Then we are going to manipulate that data. Okay. We'll get some information. Okay. What this exactly will do, here we are going to perform some basic operations of pandas. Basic operations last time we बताए थे कि क्या क्या होते हैं आपके head, tail, country. If you want detailed description of your data set, so फिर हम find out करेंगे वो detailed descriptions. Thereafter we are going to generate another graph कि which airport is connecting through which airport. So let's say we will be generating a graph for that as well. Okay. Again for this we are going to make a use of a base map. Once we get this, now we'll insert some operations of inserting a rows, updation of rows and the deletion of rows. And thereafter what exactly we'll do, we are going to create a table onto flight.db using pandas. Okay, we are going to make a use of a pandas for that. Thereafter we will be creating a tables and then finally we are going to read that table, whether we are able to create the table or not. Okay. So now let's get started. Today first of all, we are going to make a use of this SQLite. SQLite exactly होता क्या है और इसका एक important feature क्या है, मैं आपको वो बताऊँ. Okay. It is a database engine and it is a software that allows user to interact with a relational database. आपका relational database क्या होता है, which is in a form of row and column. SQLite is an in-memory library that you can call and use directly. Okay. The main feature of this SQLite is no installation and no configuration is required. You do not need any kind of an SQL server. आपको कोई Oracle नहीं चाहिए, कोई WAMP server नहीं चाहिए. It is an inbuilt library. SQLite is an in-memory library. Okay.
Most programming languages and environments have good support for working with SQLite databases. Okay, SQLite database is called SQLite 3. In Python, we are going to make a use of this SQLite 3. This is an SQLite library in order to work with your SQLite databases, and it is available in your Python since 2.5. So if anyone is going to make a use of 2.0 version, he might be not able to work on this SQLite 3. So above 2.5 version, we have this library SQLite 3. Okay. So let us say now, first of all, we'll understand what type of database today we are going to deal with. कि जो हमारा database है flight.db exactly उसके अंदर क्या क्या है. Today we will walk through how to use SQLite 3 to create query, update databases. We will also cover how to simplify working with SQLite databases using the pandas package. Okay. We will be working with airline flight data. जो आप लोगों के पास एक data set है ना flight.db, वो exactly है क्या? It is an airline flight data set which contains information on airlines, airports and routes between those airports. Okay. Each route represents a repeated flight that an airline flies between a source and a destination airport. इस तरीके का डेटा सेट आपके पास अवेलेबल है flights.db में. All of the data is in a SQLite database called flights.db. ये सारा डेटा आपका किस में अवेलेबल है? flights.db में, which contains 3 tables: airport, airline and routes. So let me just show you what type of table we exactly have in this data set. This is our first table. Okay, ये टेबल आपका रिप्रेजेंट कर रही है डेटा किसका? एयरपोर्ट्स का. ओके, देन वी हैव एन अनदर टेबल, और ये जो टेबल है नेक्स्ट टेबल, ये है आपकी एयरलाइंस की. इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि एयरलाइंस के नेम क्या क्या है. ओके, किस सिटी से वो बिलोंग करती है, कंट्री, कोड, ICAO. ये ICAO एग्जैक्टली होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ. इन दिस डेटा सेट यू विल गोइंग टू गेट 2 कॉलम्स. एक होगा आपका IATA और एक होगा आपका ICAO. ठीक है, अगर मैं आपको एयरपोर्ट की टेबल दिखाऊं तो यहाँ पर आपके पास होगा IATA और ये ICAO. ठीक है, ये कॉल साइन क्या होते हैं इनके, मतलब इन साइन या क्या है, मतलब इनके सिंबल्स वगैरह क्या है, नेम क्या है इनके. कंट्री किस में बिलोंग है, वेदर दे आर एक्टिव और नॉट, कि ये एयरपोर्ट आपके एक्टिव है या नहीं है. ये जो IATA है और ये जो ICAO है, ये दीज आर एक्चुअली कोड्स. IATA का क्या मतलब होता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एयरपोर्ट कोड. ओके, और एक और होता है आपके पास ICAO, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एयरपोर्ट कोड. तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन है आपके इस टेबल में. इसके बाद एयरपोर्ट की टेबल है, एयरलाइन की टेबल है और उनके रूट्स की टेबल है कि इनका डेस्टिनेशन कहाँ पर है, इनका लेट्स से सोर्स वगैरह कहाँ पर. इस टाइप की ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास. ये जितनी भी टेबल्स हैं ये आपकी अवेलेबल हैं किसमें? flights.db में. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Our first demonstration is that we are going to query database rows in Python. Means we are going to fetch those rows. इसके लिए हम यहाँ पर कौन सी लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे? SQLite 3. ठीक है, तो सबसे पहले हमको करना क्या है? I'm going to make a use of my Jupyter notebook. Okay. तो लेट अस से सबसे पहले आप यहाँ पर अपना मॉड्यूल इंपोर्ट करा लो. Make a use of this import and we are going to make a use of this SQLite 3. Okay, I'm going to make a use of this SQLite 3. ये लिखा आपने. Okay. Let's say our first objective is that we are going to create a connection object. Means I'm going to connect with this database first. So what exactly I'm going to do is I'm going to create a connection object. In order to connect with your database, SQLite 3 provide you a function named as SQLite 3 dot connect function. So you can make a use of this function named as connect. And what you have to do is here you have to specify the location of flights.db.
तो जहाँ पर भी आपने डाउनलोड किया you have to specify that location. So let's say I have that data set available within my D drive and I have a folder named as data set. So I'm just copying this address, specify that address over here and specify the name of your data set. तो यहाँ पर let's say मेरे data set का name है आपका flights.db. तो जब भी आप डेटा सेट में डील करोगे योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू लोड दैट डेटा सेट एंड व्हाइल वर्किंग विद डेटाबेसेस उसको लोड कराने के उसको कहते हैं आपका कनेक्ट करना. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट. मेक अ यूज ऑफ डबल बैकवर्ड स्लैश and I'm going to save this information on an object name as con. मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया शॉर्ट फॉर्म फॉर माई कनेक्शन. ये लिखा है यहाँ पर. अब यहाँ पर देखो कि हमने सबसे पहले एग्जैक्टली क्या किया. हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट अ कनेक्शन and in order to do that we are going to make a use of a connect function. So what you have to do is you have to run yourself first. In order to run I'm going to make a use of this icon or you can make a use of an alt enter as well. So let's say मैंने यहाँ पे इसको कर लिया run. In case if you face any issue कि let's say SQLite 3 module not defined, so just let me know. हालांकि आएगा नहीं. In case if you get that issue कि module SQLite 3 is not defined, just let me know in chat section. Okay. Done. Once our connection will get established, now we are going to create a cursor object. Okay. Our next step is to create a connection object. We are going to create a connection object. Or let's say I'm just changing this. You can simply say that here we are going to create a cursor object. Now first of all I would like to tell you what exactly a cursor is. तो जब भी आप डेटाबेस में डील करोगे पहले आपका क्या स्टेप रहेगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना, देन यू हैव टू क्रिएट अ कर्सर ऑब्जेक्ट. व्हाई वी नीड दिस कर्सर ऑब्जेक्ट, लेट मी जस्ट टेल यू. Once we have a connection object, we can then create a cursor object, and this cursor allows us to execute SQL queries against a database. तो जो भी आपको SQL queries फायर करनी पड़ेगी, insert, select, update. In order to execute those queries, first of all you need a cursor object. Okay, so here I'm going to create a cursor object. Here I have created an object with the name as CUR, short form for my cursor, and I'm going to make a use of connection dot cursor. This is how you can create a cursor object. Specify your connection string, and with the help of your connection string just make a use of a function named as cursor. And what this function will do, it will help you in executing SQL queries. Thereafter I'm going to execute a SQL query. Okay, now let's just execute a simple SQL query. In order to execute any query, cursor provide you a function named as execute. So with the help of this cursor, I'm going to make a use of a function named as execute. And here you can specify your query, whatever you want to execute. So I'm going to make a use of a single quotes, and here I'm going to fetch some records. So I'm going to make a use of select start from okay, I'm going to make a use of select start from, and I'm going to make a use of a table named as airlines. We have a table available within this flight.db and the name of that table is airlines. From this airlines I want to fetch some information. So let us say I'm going to make a use of this limit. What this limit will do, अगर आप लिमिट के बाद कोई भी न्यूमेरिक कैरेक्टर स्पेसिफाई कर दो 5, so you will going to get only 5 records from this particular table airlines.
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम का मतलब कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन फैच करा देना, और लिमिट का मतलब कि मेरे को सिर्फ 5 एंट्रीज चाहिए फ्रॉम दिस टेबल एयरलाइंस. So you can make a use of this limit. So you have to terminate your SQL query with a semicolon. Okay, specify this semicolon over here, else you will going to get an error. So यहाँ पर क्या होगा कि मेरी query execute हो जाएगी. Now our next step is that we are going to fetch our records. So ये जो भी मैंने query execute करी है, अब इस query से जो भी मेरे को record मिलेंगे, I'm going to fetch those records. In order to fetch records, you can make a use of function named as fetch all. Okay, here I'm going to make a use of function named as fetch all. So once we have a cursor object, we can execute it to execute a query against the database. और अभी हमने क्या query fire करी है? We are going to fetch the first 5 rows from the airlines table. Once we get this record, here let's say once we get this, execute this query. Now we will use the fetch all method to fetch all of the result of a query. और इसके लिए आप क्या यूज करोगे? With the cursor, you are going to make a use of this fetch all. What this method will do, जो भी आपने query execute करी है, उसके जो भी records होंगे वो fetch होकर आपको ये show कर देगा. So let us say here, I'm going to make a use of cursor, and from this cursor, I'm going to make a use of this fetch all. Okay. We are going to make a use of this fetch all. ये आपका सब lower cases के अंदर आएगा, fetch all. I'm going to save this information on a variable named as result. And finally, I'm going to print my results. So I'm going to make a use of print function, and here I'm going to make a use of this results. Now here I'm going to execute this. So you will get the top 5 data from the airline table. So let's say आप थोड़ा important point पे आते हैं, and now what we are going to do is we are going to map our data set. या let's say मैं इसको एक short नाम देता हूँ. We are going to map our airports. In simple term, now we are going to generate a graph. We are mapping in airports. Okay. Before proceeding, let me just tell you something. तो अभी जो हमारा रिजल्ट आया है, एज यू कैन सी द रिजल्ट आर फॉर्मेटेड एज अ लिस्ट ऑफ टपल्स. तो ये जो आपका रिजल्ट आया ये अभी किस फॉर्मेट में आया? टपल फॉर्मेट में एग्जैक्टली ये आया. ठीक है, ये एक लिस्ट है, बट लिस्ट के अंदर आप देख सकते हो टपल यहाँ पर एग्जीक्यूटेड है. ओके, सो लेट्स से ईच टपल कॉरस्पॉन्ड टू अ रो इन द डेटाबेस दैट वी एक्सेस्ड. तो यहाँ पर ये जो आपका डेटा सेट आ रहा है, ठीक है, ये आपका पहला रिकॉर्ड है. फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ये मेरा दूसरा रिकॉर्ड है. ओके, ठीक है. नाउ लेट्स से वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स मैपिंग एन एयरपोर्ट. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ प्लॉट दैट शोज वेयर ऑल द एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड आर. कि वर्ल्ड में टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स एग्जैक्टली कितने हैं. फर्स्ट विल क्वेरी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. ओके, क्योंकि ये जो हमारा डीबी है, इसके अंदर आपकी एक टेबल है एयरपोर्ट्स की. उस एयरपोर्ट वाली टेबल में अंदर आपके जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन सेव है एज अ लॉन्गिट्यूड और एज अ लैटिट्यूड. तो पहले तो मेरे को वो वाली इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी. ओके, एंड आफ्टर दैट गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस बेस मैप. दिस विल गोइंग टू जनरेट अ ग्राफ फॉर अस. ठीक है, तो लेट्स से पहले प्रोसीड करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू गेट एन इंफॉर्मेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स. तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, इन दिस सेल आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक है ना वेरिएबल में यहाँ पे लेता हूँ कोऑर्डिनेट्स के नाम से. आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेरिएबल नेम्ड एज कोऑर्डिनेट्स. In order to execute a query, you have to make a use of cursor object, and with the help of this cursor object, you have to make a use of a function named as execute. तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ आपका कर डॉट एग्जीक्यूट, cursor dot execute, and here I'm going to write my query. अब लेट्स से अगर आपके पास कोई लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेरी हो, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस सिंबल
and here I'm going to write my query. अगर आपके पास लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेरी है तो यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस मल्टी लाइन कमेंट्स. ये आप एक ही सेल के अंदर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट इससे होगा कि आपका कर्सर थोड़ा आगे बढ़ जाएगा. तो अगर मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस तरीके से एक बार अपनी ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करा सकते हो. तो यहाँ पे लेट्स से मैंने क्या यूज किया, सेलेक्ट अभी जितनी भी आपकी क्वेरी एग्जैक्टली फैच होकर आती है ना, ये आपको पास फैच होकर आती है एज अ स्ट्रिंग. ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू इज हियर वी हैव टू परफॉर्म अ टाइप कास्टिंग. तो जितनी मैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की इंफॉर्मेशन फैच करूंगा, मैं सबसे पहले उसको टाइप कास्ट कराऊंगा किसके अंदर, फ्लोट के अंदर. तो मैंने यहाँ पे यूज किया सिलेक्ट कास्ट, ओके, फॉर परफॉर्मिंग अ टाइप कास्टिंग. और इसके बाद लेट्स से मैंने क्या फैच करा लिया, लॉन्गिट्यूड. And I'm going to fetch this longitude as float. So we are going to fetch the information of longitude as float. Same you have to repeat this with longitude. So I'm going to make a use of this comma. Okay, I'm going to make a use of this cast, and I'm going to make a use of my latitude as float. यहाँ पर आप लिखते हो सिलेक्ट कास्ट लॉन्गिट्यूड एज फ्लोट एंड कॉमा कास्ट लैटिट्यूड एज फ्लोट. And from where you are going to fetch this longitude and latitude information, you can make a use of from airports. ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ पे यूज कर लिया आपके फ्रॉम एयरपोर्ट्स का. And terminate this with semicolon. Always terminate your query with a semicolon. Okay, ये यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ. तो यहाँ तक है ये मेरी query. And I'm going to fetch this information, so I'm going to make a use of dot fetch all. So now you have to run this cell for cross-checking any syntax mistake. So let's say I'm going to run this. So coordinates में आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन सेव होगी, लॉन्गिट्यूड की और लैटिट्यूड की. आप प्रिंट करके भी देख सकते हो कि कोऑर्डिनेट्स में एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन है. बहुत सारी, अभी मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करा रहा. यू कैन प्रिंट दैट एज वेल. ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन नाउ आई एम गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ. ओके, बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग. You have to follow some step. Okay, or what you have to do is go to your start, run, and open your Anaconda prompt. Anaconda prompt. ये स्टेप आप सभी को करना पड़ेगा क्लासरूम में. आप एक बार अपने Anaconda prompt को यूज करो, ठीक है, और इसको आप राइट क्लिक करके करो रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. And here what you need to do is you have to install some libraries. Okay, here I'm going to make a use of a module named as npl underscore toolkits.basemap. Okay, first of all you have to download this dependency. अब ये डिपेंडेंसी आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, ये जो आपको मैंने स्क्रिप्ट दी हुई है, इस स्क्रिप्ट के अंदर लेट्स से यू हैव टू टाइप दिस. आप लोग अपने रिसोर्स सेक्शन में जाओ, इस स्क्रिप्ट को ओपन करो और यहाँ पर आपको ये टाइप करना है, conda space install -c conda forge basemap 1.0.8.dev0. You have to install this library first. Okay, this library is all about 100 MB, so you have to download that. Okay, किस तरीके से करना है, आप अपनी स्क्रिप्ट को ओपन करो, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना और इधर आप इसको पेस्ट करना. इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा रहा हूँ. ओके, यहाँ पर आप इसको कर दो पेस्ट और इसके बाद प्रेस कर देना एंटर. सो लेट्स से यू कैन टाइप दिस एंड प्रेस एंटर. दिस विल स्टार्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस लाइब्रेरी. और जैसे ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी वी विल बी एबल टू एक्सेस दिस लाइब्रेरी. एंड द नेम ऑफ दिस लाइब्रेरी इज from mpl toolkits.basemap import basemap.
Okay, this is a library which is responsible for the generation of your map. तो जब भी आपको वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट से या मैप से रिलेटेड कुछ भी वर्क करना पड़ेगा तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी. आप इसको एक बार इंस्टॉल करो एंड जस्ट लेट मी नो इफ यू आर फेसिंग एनी इशू. मिसिंग. ओके, तो बैकग्राउंड में आप इस इंस्टॉलेशन को चलने दो और यहाँ पर आप ये सेल के अंदर ये कोड लिख सकते हो. ओके, so what exactly we are going to generate over here is we are going to generate a graph which will display all the available airports available in your world. तो आपके वर्ल्ड में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो वाला ये ग्राफ जनरेट कर देगा. इसके लिए आपको करना क्या होगा, वी नीड अ मॉड्यूल एंड द नेम ऑफ दैट मॉड्यूल इज फ्रॉम MPL. MPL का यहाँ पर मतलब होता है आपका मैप प्लॉट. मैप प्लॉट. ओके, फ्रॉम दिस MPL वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस टूल किट्स and this toolkits is available within your base map and we are going to import this module from base map. तो जो भी आपकी बैकग्राउंड में इंस्टॉलेशन चल रही है वो इसी वाले मॉड्यूल के लिए चल रही है, बेस मैप के लिए. So just type this in from MPL underscore toolkits dot base map import base map. Thereafter, in order to generate a graph in a Python, you have to make a use of a matplotlib. So I'm going to import that library as well. Import matplotlib dot pyplot as plt. So we are going to make a use of this matplot in order to generate graphs in our Python. Okay. Here I'm going to make a use of a magic pen function as well. So let us say just make a use of that function matplotlib inline. So sometimes our Anaconda Navigator fails to load that graph. Okay, so this line will guarantee that our graph will get generated. Okay. Percentage matplotlib space inline. So let's say आते हैं अपने टास्क पे. अभी हमारा टास्क है that we have to generate a graph और वो ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन दिखा दो, लिस्ट ऑफ ऑल द एयरपोर्ट्स अवेलेबल इन योर वर्ल्ड. तो यहाँ पे लेट्स से मैं आपको पहले बता देता हूँ कुछ टर्मिनोलॉजी जिसका हम यूज़ करेंगे. ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया मॉड्यूल MPL underscore toolkits dot base map. This module is responsible for plotting data on maps with matplotlib. This will going to generate all your graph. ठीक है, जितने भी आपके एयरपोर्ट्स हैं, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ओके, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना. हियर आई एम गोइंग टू राइट अ क्वेरी और वो क्वेरी जो अभी हम लिखने वाले पहले मैं आपको बताता हूँ, देन विल राइट दैट क्वेरी. आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस बेस मैप. इस बेस मैप के ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज योर प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पर यूज किया है MERC. ओके, मैं पहले आप एट्रीब्यूट्स बता देता हूँ कौन कौन से हैं. हमने यहाँ पर ये यूज़ किया है LLCRNRLAT. ओके, फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया URCRNRLAT. फिर यहाँ पर है LLCRNCRLOT. ठीक है, फिर है यहाँ पर आपका ये वाला एट्रीब्यूट lat_ts और रेजोल्यूशन. तो सबसे पहले आप वन बाय वन करके इसको समझ लो कि एट्रीब्यूट्स हैं क्या क्या. ओके, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ योर बेस मैप विच यू हैव टू स्पेसिफाई. जो पहला एट्रीब्यूट है इसका क्या नेम है, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू MERC. ओके, तो ये एट्रीब्यूट एग्जैक्टली क्या करेगा, इस MERC की सबसे पहले फुल फॉर्म होती है आपकी मैर्केटर. ओके, बट दिस मैर्केटर विल डू, इट इज अ प्रोजेक्शन विच इज अ सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन that origins from the 15th century. Okay, it is a widely recognized as the first regularly used map projection. ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि लेट्स से ये मार्केटर प्रोजेक्शन किस तरीके की होती है, तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस. ओके, एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट इट ओवर हियर. तो आपको कुछ आपका ग्राफ इस तरीके से नजर आए. दिस इज योर मार्केटर प्रोजेक्शन. ये होती है आपकी मैर्केटर प्रोजेक्शन. तो मैंने यहाँ पर कौन सी वाली प्रोजेक्शन यूज की है, आपकी मैर्केटर प्रोजेक्शन. तो पहला एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ. सो जस्ट राइट दिस हियर. आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ
बेस मैप। ओके, तो यहाँ पे लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बना लिया है शॉर्ट फॉर्म फॉर माई मैप, एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस बेस मैप। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट मैंने बता दिया कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन आई वांट। सो मैंने यहाँ पे यूज किया आपका प्रोजेक्शन इज इक्वल टू MERC। ओके, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू MERC। और भी बहुत सारी प्रोजेक्शन होती है, एक सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है, एक आपकी ब्लैक एंड व्हाइट होती है, एक रोड मैप जैसी होती है, एक सैटेलाइट जैसी होती है। वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस मैर्केटर, क्योंकि ये आपका पूरा वर्ल्ड का मैप जनरेट कर देता है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है, ओके, लेट मी शो यू दैट एट्रीब्यूट एज वेल। The next attribute we have is LLCRNLET. What this actually stands for? This stands for your latitude of lower left hand corner of the desired map domain in degrees. Okay, ये क्या है? आइडेंटिफाई करता है latitude of lower left hand corner. तो वहां से आपका latitude स्टार्ट करेगा ये lower left hand corner से। और इसके लिए जो मैंने यहाँ पर attribute यूज किया हुआ है वो ये आपका LLCRNRLET, ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर लैटिट्यूड ऑफ लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। तो यहाँ पर भी इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस एट्रीब्यूट एज वेल। ये थोड़ा आप ध्यान से लिख रहे हैं, इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह मत करना। LLCRN, साथ साथ आप एक बार लिख लो इसको LLCRN, फिर देन यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ RLET। इसका होता है लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर लैटिट्यूड। LL का मतलब लोअर लेफ्ट, CRNR का मतलब कॉर्नर, और लैट का मतलब आपका लैटिट्यूड। ओके, यहां पर लेट्स से मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट की -80। सो जो मेरा लोअर लेफ्ट हैंड लैटिट्यूड होगा मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द -80 डिग्रीज। इसके बाद होता है आपका UR कॉर्नर लैटिट्यूड। लेट मी जस्ट शो यू दैट UR कॉर्नर लैटिट्यूड, बट दिस विल रिप्रेजेंट लैटिट्यूड ऑफ अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द डिजायर्ड मैप डोमेन इन डिग्रीज। सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस अपर राइट कॉर्नर लैटिट्यूड। इसको कहते हैं अपर राइट कॉर्नर लैटिट्यूड, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू जस्ट राइट इट ओवर हियर, URCRNRLET, ठीक है, डू नॉट मेक एनी टाइप ऑफ मिस्टेक। और यहां पर जो मैंने इसकी डिग्री दी है वो दी हुई मैंने -180। मेक श्योर कि आपके पास ये स्क्रिप्ट ओपन हो, स्क्रिप्ट के साथ साथ आप एक बार चेक करते रहना कोई टाइप ऑफ मिस्टेक ना हो। सेम अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा लोअर लेफ्ट कॉर्नर लॉन्गिट्यूड। ओके, जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है आपका लॉन्गिट्यूड ऑफ लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द डिजायर्ड मैप डोमेन इन डिग्रीज। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस लोअर लेफ्ट कॉर्नर लॉन्गिट्यूड। Here what exactly you are doing is you are just specifying the degrees कि कहाँ पे मेरे ये मतलब मैप्स बनने चाहिए। और यहाँ पर जो मैंने डिग्री आपकी एग्जैक्टली यूज करी हुई है वो है आपकी -180। सेम है यहाँ पर आपकी -180। कोई नहीं, यह काम कर लेते हैं, इसको आप -80 रख दो और इसको आप एक बार ये कर दो +80। वो होता है आपका अपर राइट कॉर्नर लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे आपका अपर राइट कॉर्नर लॉन्गिट्यूड का। सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट इट ओवर हियर। मैं इसको एक नए सेल में कर रहा हूँ और यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर दो +180 डिग्रीज। वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ एन अनदर एट्रीब्यूट, और वो होता है आपका lat_TS। इसका मतलब होता है आपका लैटिट्यूड ऑफ ट्रू स्केल। सो लेट से मैंने यहाँ पे इसको यूज कर दिया आपका LET_TS और यहाँ पे इसको मैंने दे दिया 20। फाइनल एट्रीब्यूट विच वी हैव टू मेक अ यूज इज रेजोल्यूशन। ओके, और रेजोल्यूशन क्या होता है? लेट्स से इट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग कोस्ट लाइंस। अब ये कोस्ट लाइंस पता क्या होती है? जिनको नहीं पता मैं एक बार बता देता हूँ। दिस कोस्ट लाइंस आर नथिंग
a line that forms the boundary between the land and the ocean or a lake. ये होती है आपकी कोस्ट लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ इसका भी एक डायग्राम कि व्हाट एग्जैक्टली अ कोस्ट लाइन इज, तो ये होती है बाउंड्रीज बिटवीन द लैंड एंड बिटवीन योर ओशन। ये जो आपकी बाउंड्रीज होती हैं दीज आर कॉल्ड एज योर कोस्ट लाइन्स। तो ये रेजोल्यूशन एग्जैक्टली आपको क्या बताता है, ये जो हम लास्ट एट्रीब्यूट यूज करेंगे, इट इज जस्ट यूज फॉर ड्राइंग द कोस्ट लाइन्स। तो हर एक मैप में जितनी भी आपकी कोस्ट लाइन्स होंगी उसको ड्रॉ कर देगा, ओके। और इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे सी एट्रीब्यूट, जिसका मतलब होता है आपका क्रूड, CRUDE, जिसका मतलब होता है आपका क्रूड। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से यूज कर रहा है, स्पेसिफाई एन अनदर एट्रीब्यूट विच इज अवर लास्ट एट्रीब्यूट, रेजोल्यूशन is equal to C. Okay, so once you have defined this map here, now what I'm going to do is I'm going to make a use of two functions. The first one is that I'm going to draw a coastline first. तो मैंने यहाँ पे यूज किया आपका draw coast lines. Okay, so first of all we are going to draw a coast lines. Okay, and thereafter I'm going to draw map boundaries. Okay, so what I'm going to do is here I'm going to make a use of function draw map boundaries. This will going to generate a graph for you. Okay, I'm just connecting with you guys, just wait. Okay, so we are continuing. So once you draw this coast lines and once you draw this map boundary, thereafter what you have to do is here now we are going to create a tuple. Okay, ये जो आपका अभी मैप वेरिएबल है इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है आपकी लॉन्गिट्यूड्स की और आपके लेटिट्यूड्स की। So what I'm going to do is now we will be creating a tuple for longitude and latitude. तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल बनाया आपका x and y. And from this map, I'm going to get the information of L in chords and for L in chords. The first one will going to receive, going to give me a longitude, and the second one will going to give you the latitude. And once you got this information, you can create your graph. तो ये किस तरीके से आप execute करोगे? Let me show you. The first element in each tuple is the longitude of the airport, and the second is the latitude. Okay, the first one is for your longitude, and the second one is for your latitude. Once you fetch this information, then you can generate a graph with the help of this x and y variable. Okay, that's all you need to do is, so here I'm going to declare two variable x and y. Okay, and I'm going to get an information in a tuple format. So I'm going to make a use of L, and from 0th index, cause in 0th index we have the information of longitudes. I'm going to fetch this information for L in chords. Okay, here I'm going to make a use of this for each loop for L in chords. Specify this in list. तो पहले आर्ग्यूमेंट में क्या इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स की। इसके बाद लेट्स से यहाँ पर अब आप एक और लिस्ट इंप्लीमेंट करो। इसके अंदर आई एम गोइंग टू गेट एन इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, एंड एट द फर्स्ट इंडेक्स वी हैव अवर लैटिट्यूड्स। सो यहाँ पर मैंने यूज किया आपको फॉर एल इन okay, this is what you have to write, and when you get this information, now we are going to generate a scatter graph. एक मैं scatter chart बनाऊंगा यहाँ, और scatter बनाने के लिए you have to make a use of this m, and I'm going to make a use of this scatter. ये आपसे दो रेडियस रिसीव करता है, x radius and your y radius. So I'm going to specify this information x and y. Thereafter it will going to receive you कि आपको मार्कर कौन सा यूज करना है। तो लेट अस से मार्कर का स्टाइल में दे रहा हूँ आपका O. दिस विल गोइंग टू जनरेट अ सर्कल। आप और भी यूज कर सकते हो, डिस्क यूज कर सकते हो, स्क्वायर यूज कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ आपके सर्कल का।
इसके बाद लेट्स से आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई द कलर एज वेल एंड द कलर विच आई एम गोइंग टू मेक अ यूज इज रेड। तो यहाँ पर होगा क्या कि डॉट डॉट में हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी ऑफ ऑल द अवेलेबल एयरपोर्ट्स इन आवर वर्ल्ड। ओके, एंड हाउ मेनी टाइप्स यू वांट टू जनरेट? लेट्स से आई जस्ट वांट टू जनरेट अ वन ग्राफ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका ये वन। Thereafter you can run this cell. तो ये सेल उन्हीं पे वर्क करेगा those who have base map installed, until you are going to get an error that base map module was not defined. ठीक है, तो जब आपकी इंस्टॉलेशन हो जाए तो you can run this cell. हाँ, सेकंड वाली फाइल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या टाइपो मिस्टेक की, ये मैं इसको हटा दूँ। नाउ आई एम गोइंग टू रन माई सेल। So you will get some warning, you can ignore that warning, and if you scroll down a little bit you will going to get the map. और ये जो आपका स्कैटर है, सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं आपके रेड में है, ये आपका अगर आप तभी जनरेट होगा व्हेन यू हैव दिस बेस मैप। तो कितनों की इंस्टॉलेशन होगी बेस मैप में? दे कैन रन दिस। ओके, सो यू कैन परफॉर्म द इंस्टॉलेशन, यू हैव दैट स्क्रिप्ट अवेलेबल विद यू, और ये आपका इस तरीके से एक बार ग्राफ जनरेट कर देगा। ये तो बेसिक क्रूड ऑपरेशन सब परफॉर्म कर लेते हैं क्योंकि उसके लिए कोई इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इन ऑर्डर टू जनरेट दिस ग्राफ यू नीड दिस बेस मैप। ओके, ये कमांड्स आपको मैंने दे दी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं आगे कंटिन्यूएशन में। तो आफ्टर जनरेटिंग अवर मैप, लेट्स से वी आर कंटिन्यूइंग, यहाँ से आप अपना ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं पांडास के। ओके, सो लेट्स से नाउ वी आर गोइंग टू रीड आवर रिजल्ट इनटू अ पांडास डेटा फ्रेम। अभी आपको याद हो तो ऊपर वाले सेल में जो हमारा डेटा रीड होकर रहता है वो कुछ इस फॉर्मेट में आता है, इन फॉर्म ऑफ टपल। बट इफ यू वांट टू फैच योर इन्फॉर्मेशन इन अ टैबुलर फॉर्मेट, तो मैंने आपको बताया था कि पांडास के पास दो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक सीरीज और एक डेटा फ्रेम। सीरीज फॉर वन डायमेंशनल अरे एंड फॉर डेटा फ्रेम फॉर इन ऑर्डर टू फैच एन इन्फॉर्मेशन विच इज अवेलेबल इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट। ओके, so those who are not aware of pandas, here we are going to make a use of a pandas library which is used to fetch records from your CSV files, from your databases file and from URL as well. Okay, pandas के पास दो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम। सीरीज फॉर वन डायमेंशनल एरे एंड डेटा फ्रेम फॉर fetching the information in row and column format. So what you have to do is, first of all you have to import that module, import pandas as PD. Okay, and now we are going to read our result with the help of pandas. तो pandas आपको आपके डेटाबेस के रिजल्ट किस तरीके से दिखाएंगे और एक नॉर्मल अप्रोच आपको किस तरीके से दिखाएगी, ये डिफरेंस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अवर रिजल्ट। हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ डेटा फ्रेम। एक मैंने वेरिएबल बना लिया डेटा फ्रेम के नाम से। You all can execute this. Now pandas provide you a function and the name of that function is read SQL query. Okay, किस function का आप use कर सकते हो? Read SQL query. So what I'm going to do is, with the help of this PD, I'm going to make a use of function read underscore SQL underscore query. Okay, so let's say here we are going to make a use of a pandas read underscore dot SQL query function. This function is used to read the result of a SQL query directly into a pandas data frame. Okay, it has several advantages over the query we did above. जो हमने ऊपर की query करी थी और इस वाली query में थोड़ा सा difference है. It does not require us to create a cursor object or call fetch all at the end. So if you are fetching your records with the help of Panda, you do not need to create a cursor object and you do not need to make a use of this fetch all function. Thereafter, it automatically reads in the names of the header from the table. तो आपके टेबल्स की जो भी फील्ड होगी उसको ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा। ठीक है, आपके टेबल के जो भी आपने कॉलम के नेम स्पेसिफाई करे होंगे। It creates a data frame so we can quickly explore the data. जैसे ये एक रिप्रेजेंटेशन है which is hard to read, और आपकी रिप्रेजेंटेशन आप देखना वो होगी आपके टेबल और रो के फॉर्मेट में, मतलब रो और कॉलम के फॉर्मेट में।
जस्ट स्पेसिफाई योर क्वेरी ओवर हियर। मैंने यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट करी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, I'm going to make a use of a table named as airlines and I'm going to limit with 5. Terminate your query with a semicolon. Okay, this is the syntax which you have to write. Select star from airlines, limit 5. Okay, and thereafter you can just print this data frame and you can run your cell. So once you run your cell, लिमिट 5 क्या करेगा कि आपको सिर्फ है ना टॉप 5 रोज ऊपर से रिटर्न करके देगा। ओके, यहाँ पर आप एक बार अपना कनेक्शन ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई कर देना। आई हैव मिस्ड सम एट्रीब्यूट। यहाँ पर आपको अपना कनेक्शन देना पड़ेगा कि जो क्वेरी है ये फायर कहाँ पर होगी और मेरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट किधर है, यहाँ पर कि flights.db में जाके एग्जीक्यूट होगा। ओके, देन आई एम गोइंग टू रन माय सेल अगेन एंड यू विल गेट योर इन्फॉर्मेशन। टेबल फॉर्मेट में आपको आपका SQL का डेटा मिल जाएगा इफ यू आर गोइंग टू रीड दैट डेटा विद द हेल्प ऑफ pandas। सो जस्ट स्पेसिफाई योर क्वेरी एंड द नेक्स्ट एट्रीब्यूट विल बी योर कनेक्शन स्ट्रिंग कि कहाँ पर आपका डेटा सेट है। जस्ट एग्जीक्यूट दिस एंड लेट मी नो इफ यू आर फेसिंग एनी इशू। सो लेट्स से नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम बेसिक ऑपरेशन ऑफ pandas। इसको कहते हैं डेटा एक्सप्लोरेशन। अगर आपको अपने डेटा को एक्सप्लोर करना हो कि क्या क्या डेटा मेरे पास है। लेट्स से फर्स्ट आई वांट ओनली कॉलम्स इंफॉर्मेशन। I need to fetch all columns name. So here I'm going to make a use of my data frame and from this data frame I'm just going to get an information of country. मैं यहाँ पर अभी फिलहाल यूज कर लेता हूँ आपके कंट्री का। So let's say ये क्या करेगा, ध्यान से देखना। जैसे मैं सेल को रन करूँगा you will going to get all the countries name, United States, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, रशिया। ठीक है, तो अगर आपको सारे कॉलम्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो df.columns। So you will get the complete list of columns available within your table airlines. Let's explore our dataset more. Here I'm going to get top 10 rows. I want to get all the top 10 rows. So here I'm going to make a use of a head function. Okay, here what you can do is you can make a use of a head function. तो कैसे आप यूज करोगे, जस्ट स्पेसिफाई दिस df.head and let's say I want top 10 rows, so मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे दिया आपका 10. So when I run this cell I am going to get the top 10 information. ठीक है, इस तरीके से आप नीचे से भी इंफॉर्मेशन फैच कर सकते हो। वो कैसे होती है, टेल। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन मेक अ यूज ऑफ df.tail एंड यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस ट्री। तो वी हैव ओनली 5 रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद इन दिस टेबल। तो यहाँ से बॉटम से वो 3 रिकॉर्ड आ जाएंगे 4, 3, 2। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लोर योर डेटा विद द हेल्प ऑफ pandas। ओके, तो ये रीडेबल फॉर्मेट में होगा और यहाँ पर आपको कोई कर्सर ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है और आपको यहाँ पर कोई फैच ऑल फंक्शन यूज करने की भी नीड नहीं है। ठीक है, तो लेट अस से अब यहाँ पर वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम क्रूड ऑपरेशन। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहला ऑपरेशन जो हम करने वाले वो करने वाले इंसर्टिंग रोज ठीक है यूजिंग pandas। तो पहले मैं आपको कन्वेंशनल अप्रोच बताता हूँ और फिर बताता हूँ कि pandas में भी आपको अगर रिकॉर्ड कराना हो इंसर्ट तो कैसे। तो दोनों तरीके आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट अभी हम जो स्टेप कर रहे हैं वो कर रहे हैं नॉर्मल अप्रोच। इन दिस आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय pandas। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले यू हैव टू क्रिएट अ कर्सर ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया con.cursor। बना हुआ तो आप एक बार कर सकते हो। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कमेंट में कर रहा हूँ कि मेरे पास ये ऑलरेडी है। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कर्सर ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे यूज किया con.cursor।
इनकेस नहीं है, अगर यह इश्यू आता है कि कर्सर इज नॉट डिफाइंड, तो आप एक बार ये लाइन जरूर लिख देना। और मैंने बताया था कि कर्सर ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं, इन ऑर्डर टू इंसर्ट। ठीक है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ कर्व डॉट एग्जीक्यूट, and with the help of this execute I am going to specify my query। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ आपका insert into, and the table which I am going to make a use is airlines, insert into airlines। Thereafter we have to specify the values जो हमको देनी है। तो एयरलाइंस में आपके पास एग्जैक्टली डेटा क्या क्या है, लेट मी जस्ट शो दैट डेटा एज वेल, जो हम वैल्यूज एग्जीक्यूट करेंगे। एक इंडेक्स आएगा, उसकी एक आईडी आएगी, नेम आएगा, कोई एलियास मतलब कोई दूसरा नेम, IATA कोड, ICAA कोड, कॉल साइन, कंट्री, इस तरीके की इंफॉर्मेशन अभी हम इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, तो लेट मी जस्ट इंसर्ट दोज इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे लेट से सबसे पहले क्या ना, मैं कोड डाल, यार से मैंने कोड डाल दिया आपका 6048। ठीक है, मैं क्या रैंडम कोड डालूं ताकि मैं इसको एक्सेस कर सकूं कि ये इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया आपका 6048। ठीक है, तो अभी मैंने इंडेक्स भी एक बार खुद ही लिख दिया, वो कर भी सकते हो, आईडी भी मैं देता हूँ। ठीक है, इसको लेट से मैंने एक आईडी दे दी है 19846, कुछ भी एक आईडी दे दो 19846। This is ID which I am going to give. Let's say मैंने इसको एक नाम दे दिया टेस्ट फ्लाइट, ये मेरी फ्लाइट का नेम हो गया आपका टेस्ट फ्लाइट। ठीक है, इसके बाद लेट्स से आप कुछ ब्लैंक वैल्यूज डाल दो। ये ब्लैंक वैल्यूज मैं किसके लिए दे रहा हूँ, लेट्स से आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस एलियास IATA और ICAA, तो मैं यहाँ पर कुछ ब्लैंक एंट्रीज भी करा देता हूँ। फिर यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक एंट्रीज करा दी। तो इस तरीके से ब्लैंक एंट्रीज भी करा सकते हो, और आप यहाँ पर एक और भी यूज कर सकते हो, उसको कहते हैं नल। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि अभी ये IATA कोड और ICAA कोड मैंने अभी एज अ ब्लैंक छोड़ दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया नल, नल और नल। ये कौन कौन से कॉलम्स के अंदर मैं इंसर्ट करा रहा हूँ, आप ऊपर वाले टेबल का यूज कर सकते हो, कॉल साइन, कंट्री, और ये एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो लेट्स से एक्टिव के लिए मैं इधर यूज कर लेता हूँ कि हाँ ये एक्टिव है। मैं चेक कर लेता हूँ, काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एक बार मैं यूज करता हूँ डबल कोट्स का। Now let me just count these values। जो दो टोटल कॉलम्स है मेरे पास, एक इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, वो तो मैंने नल दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर देते हैं। सो वी हैव इंडेक्स हमने स्पेसिफाई कर दिया, आईडी, नेम, एलियास मैंने ब्लैंक छोड़ा है, IATA मैंने ब्लैंक छोड़ा है, इसको भी मैं एक और ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ICAA। इसको नल कर दो, या कॉल साइन, कंट्री, एक्टिव, ये सब आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो वी हैव इंडेक्स स्पेसिफाई हमने कर दिया, आईडी स्पेसिफाई कर दिया, फ्लाइट का नेम है, ICAA कोड और ITA कोड मैंने नल कर दिया। एक नल मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एलियास की दे दो, लेनी। तो टोटल 9 एंट्रीज आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, अगर आप कन्वेंशनल अप्रोच यूज कर रहे हो, इफ यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ योर पांडास, तो आपको क्या करना होता है कि लेटेस्ट से आपने कर्सर ऑब्जेक्ट बना रही हो, ओके, उसके बाद आपने अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करा, जो भी आपको एग्जीक्यूट करा। इसके बाद ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट है, योर SQLite डज नॉट राइट टू द डेटाबेस अंटिल यू कमिट अ ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, तो ये जो आपने अभी डेटाबेस के अंदर इंसर्ट वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करी है, दिस विल नॉट गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड until and unless you are going to make a use of this commit। ठीक है,
A transaction consists of one or more queries that all make changes to the database at once. ये transactions के बारे में सुना है? Commit, rollback, transaction. ठीक है, MCA वाला तो सुना ही होगा. ठीक है, एडवांस स्केल में आपने पढ़ा होगा कमिट, रोल बैक, ट्रांजेक्शन, ये सब. तो ट्रांजेक्शन एग्जैक्टली होती क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर क्वेरीज दैट ऑल मेक चेंजेस टू द डेटाबेस एट वंस. ओके, दिस इज एक्चुअली डिजाइन टू मेक इट इजियर टू रिकवर फ्रॉम एक्सीडेंटल चेंजेस और एरर. वरना एग्जैक्टली होता क्या था कि ट्रांजेक्शन अलाउ यू टू रन several queries then finally alter the database. This ensures that if one of the query fails, okay, the database is not partially updated. MySQL में क्या होता था कि अगर मैंने क्वेरी के अंदर कोई भी मिस्टेक कर दी थी तो वो आधी क्वेरी जाके एग्जीक्यूट हो जाएगी डेटाबेस के अंदर, बट ट्रांजैक्शन विल गारंटी दैट कि कोई एरर मिस्टेक नहीं होगा. इसलिए यूज होता है आपके ट्रांजैक्शन का और कमिट का. ठीक है, तो वैसे भी SQLite आपको ये जो भी होगा आपके डेटाबेस पे राइट नहीं करने देगा until and unless you are not going to make a use of this commit. And this commit ensure कि जो आपकी क्वेरी है वो एक एरर फ्री क्वेरी है. ओके, इनकेस अगर कोई एरर आता है तो वो आपको एक एक्सेप्शन दिखा देगा कि यू हैव अ मिस्टेक इन योर क्वेरी. ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस कमिट. यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस कमिट. और ये कमिट फंक्शन आपका कैसे एग्जीक्यूट होगा? विद द हेल्प ऑफ योर कनेक्शन स्ट्रिंग con.commit. तो मैंने अपनी क्वेरी स्पेसिफाई कर दी, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया con.commit और लेट्स से मैं चेक कर लेता हूँ कि whether this query has been executed or not. ठीक है, ये क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट हुई है या नहीं है. इसके लिए मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ pandas read SQL query function. read SQL query function. We are going to make a use of this read SQL query. और यहाँ पर अपनी क्वेरी स्पेसिफाई कर दो, select star from airlines. I am going to specify my query, select star from airlines where ID is equal to जो भी आपने ID यहाँ पे स्पेसिफाई करी है 19846. ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 19846. टर्मिनेट दिस विद सेमीकोलन. और ये क्वेरी कहाँ पर एग्जीक्यूट होनी चाहिए? आपके कनेक्शन में. तो कॉमा देखिए, यू कैन स्पेसिफाई योर कनेक्शन. ओके, एंड वी कैन जस्ट रन दिस सेल. अगर कुछ इश्यू होगा तो यहाँ पर दिख जाएगा. आपके यहाँ पर अभी एक ही रिजल्ट रिटर्न होकर आ रहा होगा. ठीक है, तो लेट से अभी मैं यहीं तक ही अभी स्टॉप कर रहा हूँ. इसके बाद हम कंटिन्यूशन में करेंगे. कल हम करेंगे इसके अंदर आपका अपडेट का ऑपरेशन, डिलीट का ऑपरेशन और अल्ट्रेशन के ऑप्शन. ओके, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू जनरेट अ मैप एज वेल. सो मेक श्योर कि कल तक आप लोगों के मशीन में ये इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ये दो लाइब्रेरीज conda install -c, ये आप करके ले आना. और जैसे ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाए देन यू हैव टू इंस्टॉल दिस. ये स्क्रिप्ट आपके रिसोर्सेज में अवेलेबल है और मेल भी की है. ठीक है, इट इज़ अवेलेबल विद इन योर रिसोर्स सेक्शन. यहाँ पर है ये अवेलेबल HTML फाइल, और इसके अंदर मैंने पूरी ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करी हुई है. तो जैसे ही आपका ये इंस्टॉल हो जाता है मेक श्योर कि आप इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेना यहाँ तक, क्योंकि कल इसके बाद हमको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स ग्राफ जनरेट करना है. वो ग्राफ हमारा इस तरीके का होगा. ये रूट्स बताएगा कि किस एयरपोर्ट से कौन सा एयरपोर्ट जाए. सो इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी एंड सेव योर स्क्रिप्ट. आप अपनी स्क्रिप्ट को एक बार यहाँ पे सेव कर लेना. इसी के आगे हम कंटिन्यूशन में करेंगे. सेव योर स्क्रिप्ट विद एन IPYMB फॉर्मेट और विद एन HTML.